Hey guys, welcome back to my channel, and today we will start from the next question of the SQL. We had completed this much of parts. Okay, sorry. We had covered these questions and now we're going to cover this remaining three questions of the basic joints. So first question, student examination. Okay, so wait a minute. In this question you are given two tables, no, actually three tables, that is student, subject and examination. The student table contains two columns, that is student id and student name, see, which is of type int and varchar. Next one is the subject table, which contains a single column, that is subject name, and it is a type of varchar. Third column is examination, which contains the student id and a subject name, that which exam the student had given and in which the student had appeared. Okay, see, there are three tables, that is first student table, which contains student id and student name. Second table is a subject name table, which contains the type of subject the schools have. Third table contains the examination, which contains the student id and the student name. Now what you have to do, you have to write a solution to find the number of times each student attended each exam. Written the result table ordered by student id and subject name. The result format is in the following example. Okay, you have to written the number of time each student attend each exams, that you have to tell that student id 1 had how many times the student id 1 has given exam of maths, physics and programming. Similarly for Bob, you have to calculate how many times the student id 2 has given the exam of maths, physics and programming. Similarly you have to calculate for 13, student id 13 की 13 ने कितनी बार मैथ्स का एग्जाम दिया है, फिजिक्स का, प्रोग्रामिंग का, सो ओके. तो you have to check, wait a minute. So you have to check for each student ID and you have to check for all the subjects. For student ID 1 you have to check for maths. 1 के लिए आपको maths भी check करना है, physics भी check करना है, programming भी check करना है. Similarly for 2 also you have to check maths, physics and programming. For 13 also you have to check. 1 के लिए भी मुझे तीनों एग्जाम चेक करना है, that is maths, physics and programming. 1 के लिए तीनों चेक करना है. देन 2 के लिए भी मुझे मैथ्स चेक करना है, फिजिक्स चेक करना है, प्रोग्रामिंग चेक करना है. देन ID 13 के लिए भी मुझे तीनों चेक करना है. तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक जॉइन होता है, दैट इज़ नोन एज क्रॉस जॉइन. क्रॉस जॉइन तभी लगता है जब हमको एक टेबल के एक रो को दूसरे टेबल की सारी रो के साथ अगर जॉइन करना है या कंपेयर करना है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्रॉस जॉइन लगेगा. तो मुझे इतना तो समझ गया कि इस टेबल और इस टेबल के बीच में मेरा कौन सा जॉइन लगने वाला है, मेरा जॉइन लगने वाला है क्रॉस जॉइन. ओके, यहाँ पे मेरा क्रॉस जॉइन लगेगा. अब मुझे ये तो मिल, उसके बाद मैं इस क्रॉस जॉइन को इस टेबल के साथ क्या कर लूँगी, लेफ़्ट जॉइन कर लूँगी. किस बेसिस पे लेफ़्ट जॉइन कर लूँगी, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे. किस बेसिस पे लेफ़्ट जॉइन कर लूँगी, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम के बेसिस पे. देखो, क्योंकि इस टेबल और इस टेबल में स्टूडेंट आईडी कॉमन है, इस टेबल और इस सब्जेक्ट नेम कॉमन है, तो मैं वो कर दूँगी. अगर मैंने, तो मुझे यहाँ पे ऐसे करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये तो मिल गया. अब मैंने स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे करें तो स्टूडेंट आईडी 1 मतलब अलाइस ने मेरे मैथ्स एग्जाम कितनी बार दिया, 3 बार. हाँ, और मैं ये 3 कैसा है, मैं क्योंकि मैं इसको आखिरी में ग्रुप बाय कर लूँगी, स्टूडेंट आईडी को ग्रुप बाय कर लूँगी स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम, इनके बेसिस पे. ठीक है, और मुझे ऑर्डर बाय भी करना है. ऑर्डर बाय क्वेश्चन में गिवन है, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम करना है. ओके, तो क्वेरी से समझते हैं. मुझे कितने कॉलम चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए. पहले तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है स्टूडेंट को, इतने कॉलम्स को, और मैंने स्टूडेंट टेबल को क्रॉस जॉइन करा है सब्जेक्ट टेबल से. स्टूडेंट एस लिखो आप या स्टूडेंट एज एस लिखो, वो दोनों ये सेम ही होता है. ठीक है, स्टूडेंट टेबल का मैंने क्रॉस जॉइन करा है सब्जेक्ट के साथ. अब मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, स्टूडेंट टेबल से मुझे स्टूडेंट आईडी कॉलम चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट एस
स्टूडेंट एस टेबल से मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए, एस टेबल से मुझे सब्जेक्ट नेम चाहिए, फिर सब्जेक्ट टेबल से मुझे सब्जेक्ट नेम चाहिए, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे अटेंडेंट एग्जाम्स, तो ये तो मुझे कैलकुलेट करना है। तो अभी इतना आप छोड़ दो, ठीक है, इतना आप छोड़ दो, अच्छे से देखो। इतनी चीज़ें मैंने सिलेक्ट कर ली, कहाँ से सिलेक्ट करी, स्टूडेंट है, स्टूडेंट से, और इसका क्रॉस ज्वाइन करा मैंने सब्जेक्ट के साथ। फिर इतना जो पार्ट है इसका मैंने जो भी आंसर आया मेरा उसका मैंने लेफ्ट ज्वाइन करा मेरी थर्ड टेबल के साथ, डेट इज़ एग्जामिनेशन टेबल के साथ। एग्जामिनेशन टेबल के साथ किस बेसिस पे करा है, सब्जेक्ट नेम के बेसिस पे और स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे करा है, ठीक है। और फिर मैंने ग्रुप बाय कर लिया है स्टूडेंट आईडी से, स्टूडेंट नेम से, सब्जेक्ट नेम से। मैंने पहले भी बताया है जिसके सिलेक्ट के बाद जो भी कॉलम्स होते हैं हम ग्रुप बाय भी उसी के बेसिस पे करते हैं, तो मैंने वही करा है। और ऑर्डर बाय तो मुझे बोला था क्वेश्चन में किस बेसिस पे करना है। अब ये अटेंडेंट एग्जाम वाला कैसे आया, मैं क्या करना है, ई डॉट सब्जेक्ट नेम कैलकुलेट, मतलब हर एक आईडी के लिए, हर एक आईडी स्टूडेंट आईडी के लिए, हर एक सब्जेक्ट नेम के लिए मैं काउंट कर लूँगी कि मैथ्स मेरा कितनी बार अपेयर हो रहा है। स्टूडेंट आईडी वन के लिए मेरा मैथ्स ये क्वेरी क्या करने वाली है मेरी, ये काउंट करेंगे कि मेरे स्टूडेंट आईडी वन के लिए मैथ्स का एग्ज़ाम कितनी बार उसने दिया है, फिजिक्स कितनी बार दिया है, प्रोग्रामिंग कितनी बार दिया है, उसको काउंट कर लेगी। तो वही हमें मैथ्स का काउंट 3 रिटर्न करेंगे, फिजिक्स का 2, प्रोग्रामिंग का 1। और इस कॉलम को हम एज एन अटेंडेंट एग्जाम कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे आउटपुट टेबल में, ठीक है। रन करके देखते हैं। ओके, so see, our output table is same as the expected output table. So basically, what we have to calculate here, we have to calculate the students, number of times each student had attended the exam. So what we had done here, हमने क्रॉस join लगाया between student and subject with the, and this cross join ensures that every student is paired, that every student is paired with every subject's name. Okay. It also ensures that even if the subject hasn't taken an examination, for example, if the subject hasn't taken an examination, then also we have to calculate for the each student. Okay. And then इन दोनों का जो आंसर आया है उसका हमने लेफ्ट जॉइन करा है एग्जामिनेशन के सेट। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैनेजर विथ एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। ओके, in this question you are given a one table, that is employee table, which contains 4 columns, that is ID, name, department and manager ID. ID is a primary key of a column with unique value for this table. Each row of this table indicates the name of employee, their department and their ID of their manager. If manager ID is null, then employee does not have a manager. No employee will be a manager of themselves. Write a solution to find managers with at least 5 direct reports. Written the result table in any order. For example, you are given this table. You have to return the manager with at least 5 direct report. See, you can see मैनेजर कौन है, मेरा 101 वाला आईडी वाला ही है जो 5 बार अपीयर हो रहा है, तो इसमें तो ऑब्वियसली वाले 101 आईडी किसकी है, जॉन की है, तो जॉन ही मेरा मैनेजर होगा विद एटलीस्ट या इक्वल्स टू 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। तो मुझे पहले पहले क्या मैं वो पहले मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैनेजर आईडी में से मैं क्या वो आईडी लूँ जो एटलीस्ट 5 बार अपेयर हुई है, 5 बार जो आईडी आई है मैं वो आईडी कैलकुलेट कर लेती हूँ, और फिर वो आईडी का जो भी नाम है मैं वो रिटर्न कर दूंगी। ओके, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक सब क्यूरी वाला कंसेप्ट यूज करा है। अगर मैं सिलेक्ट मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय करती हूँ, वेट अ मिनट, अगर मैं सिलेक्ट मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय करती हूँ, ग्रुप बाय मैनेजर आईडी हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, तो क्या होगा, इस क्वेरी से मेरे को इस मैनेजर आईडी कॉलम में से वो आईडी मिल जाएगी जिसका काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। तो मुझे यहाँ पे 101 ही है जिसका काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इस ब्रैकेट से मेरे को 101 मिल गया। 101 मिल गया, अब मैं सिलेक्ट करूँगी वो नेम इस
टेबल से जहाँ पे आईडी मेरी 101 है, जहाँ पे मेरी आईडी 101 है, और वही मैं आउटपुट कर दूंगी. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टिल नाउ. व्हाट आई हैव डिड हियर, आई एम running a subquery. ठीक है, this subquery selects the part from a manager ID, this manager column of an employee who manage at least 5 other employees. You can see here the manager, the ID 101 manages the other 5 employees, that is 102, 3, 4, 5, and 6. Okay, and what outer query is doing? It retrieves the name of the employee. Okay, it is retrieving the name of the employee whose ID matches the count. Okay, because it is giving us the John, because John has covered other 4 employees, no, other 5 employees, that is Dan, James, Amy, and Ron. Okay, so therefore we are returning ID 101, name that is John. Okay, let's try to run this. See, John is handling the other 5 customers or employee, you can say, so we are returning John. Okay, moving to our next question, that is confirmation rate. In this table you are given two, in this question you are given two tables, sorry, that is sign up and confirmation. The sign up table contains two columns, that is user ID and timestamp. User ID is the column of unique value for this table. Each row contains information about sign up table for a user with ID user ID. Confirmation table contains the three columns, that is user ID, timestamp, and action. The user ID and timestamp is the primary key. It is a combination of column with unique value for this table. User ID is a foreign key, okay, reference from a reference column to a sign up table. You can see here user ID is a foreign key from this table. Each row of this table indicates that user with ID requested a confirmation message at timestamp, and that confirmation message was either confirmed or expired without confirming. The confirmation rate of a user is a number of confirmed message divided by total number of requesting confirmation message. The confirmation rate of a user did not request any confirmation message is 0. Round the confirmation rate to 2 decimal places. Write the solution to find the confirmation rate for each user. Okay, for each user मतलब कि ये टेबल की सारी आईडी तो हमें चाहिए ही चाहिए. ओके, देखो ये दो टेबल है, हर टेबल हर आईडी के लिए मुझे कंफर्मेशन रेट चाहिए, मतलब कि ये इस आईडी, इस कॉलम के सारी आईडी को मुझे कंपेयर करना है. तो इसका मैं लेफ्ट जॉइन करूंगी इसके साथ, तो इतना तो मुझे समझ गया है. साइन अप टेबल का मैं लेफ्ट जॉइन करूंगी कंफर्मेशन टेबल के साथ, किस बेसिस पे, यूजर आईडी के बेसिस पे, और एट लास्ट मैं ग्रुप बाय भी कर दूंगी यूजर आईडी के बेसिस पे. अब मुझे चाहिए कंफर्मेशन रेट. पहले तो मैं यूजर आईडी सेलेक्ट कर लूंगी, नॉर्मल यूजर आईडी. कंफर्मेशन रेट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? कंफर्मेशन रेट मेरा हो रहा है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, नंबर ऑफ कंफर्म मैसेज, कितनी कितनी उसने रिक्वेस्ट करी है, कितनी उसने रिक्वेस्ट करी है और कितने मैसेज उसके कंफर्म हुआ है. ठीक है, तो देखो ये मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ. सबसे पहले अगर मैं ये एक्शन में वो कैलकुलेट कर लूँ कि कितनी कितनी रिक्वेस्ट मेरी कंफर्म हुई है. ठीक है, तो मैंने ये काउंट कर लिया कि कितनी रिक्वेस्ट मेरी कंफर्म हो गई. ओके, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्शन कंफर्म, कितनी बार मेरा कंफर्म हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितनी उसने रिक्वेस्ट करी है, वो आईडी ने कितनी बार रिक्वेस्ट करी है, वो आईडी ने कितनी बार रिक्वेस्ट करी है, वो ये मैं कर ले रही हूँ. और फिर इसमें पूरे इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे कंफर्मेशन रेट मिल जाएगा. क्योंकि फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 6 के लिए मेरा कंफर्मेशन रेट है 0.00. कैसे आया? आईडी नंबर 1 ने इतने इस दिन रिक्वेस्ट करी थी इतने बजे, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म नहीं हुई है. तो कोई भी रिक्वेस्ट कंफर्म नहीं हुई है मतलब अपॉन में तो ज़ीरो आएगा, तो अब तो वो ज़ीरो आ गया. कोई और कैलकुलेट करते, दैट इज 7. यूज़र आईडी 7 ने यूज़र आईडी 7 ने मेरी रिक्वेस्ट करी थी 4 जैन को 2020 में इतने बजे. ठीक है, उसकी कंफर्म हो गई यहाँ पे, उसके इस दिन भी कंफर्म हो गई, उसके इस दिन भी मतलब टोटल इसकी कंफर्म आईडी कितनी है, 3.
मतलब टोटल से रिक्वेस्ट कितने बार करी थी, एक बार करी थी, और आईडी कितनी है 3, उसका कंफर्मेशन रेट कितना आ गया, डिवाइडेड करके 1.00। ओके, देखो यहाँ पे यूजर 7 मेड ने 3 रिक्वेस्ट मेड करी, और उसकी सारी कंफर्म हो गई, इसलिए उसका कंफर्मेशन रेट कितना है 3/3। यूजर नंबर 2 को अगर देखें तो यूजर नंबर 2 ने एक ही बार रिक्वेस्ट, हाँ, यूजर नंबर 2 ने 2 रिक्वेस्ट भेजी है, उसमें से एक उसकी कंफर्म हुई है, तो एक कंफर्म हुई है, मतलब एक अपन टोटल भेजी कितनी थी 2, तो उसका कंफर्मेशन रेट कितना गया 0.1। तो ये मेरा 1 क्या कैलकुलेट हो रहा है, ये 1 मेरा वो एक्शन जो कंफर्म्ड है उसका सम कैलकुलेट हो रहा है, अपॉन ये 2 क्या है मेरा, कि उसने टोटल, मतलब इसका काउंट, सॉरी, कि यहाँ पे मेरा 2 कितनी बार आया है, 2 बार ना, कि 2 बार उसने रिक्वेस्ट करी थी वो, ये मेरा उससे कैलकुलेट हो रहा है। फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं राउंड अप कर रही हूँ 2 डेसिमल तक, वही यहाँ पे दिया है, और अगर वैल्यू मेरी नल है कि किसी का कंफर्मेशन रेट नहीं निकल रहा है, उस केस में मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0.00 पास कर दे रही हूँ। ओके, और इस के आंसर को ऐसा मैं कंफर्मेशन रेट वाले कॉलम में शो कर रही हूँ, इसलिए वहाँ पे एज कंफर्मेशन रेट आया। सी, यू कैन मैच द आंसर। ओके, सो थैंक यू। आज हमने इतना कवर करा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट में हम ये बेसिक एग्रीगेट फंक्शन ये सारा पार्ट कवर कर देंगे। ऐसे करके ये एसक्यूएल के कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, अगर आपने इतना सॉल्व कर लिए तो एसक्यूएल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बस हम मेरे साथ ये आप कवर करते रहिए। ओके, थैंक यू।